Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your trainer Ikra Khan and you all are here on English Learning Point. So today I'm with a new modal verb and this is word. As I have already taught you about can, could, should, may, might. So this is the new one, would, right? So what is would? Would is an auxiliary verb and a modal verb where we can use them all. It talk about past. It talks about the future in the past and it expresses in the conditional mode. We also use would for other functions such as expressing desire, polite request and questions, opinion or hope, wish and regrets. So ये सारे हमारे जो है functions हैं जहाँ पर हम would को use कर सकते हैं. So use for the past. We use would for the past. We often use would as a kind of past tense of will or going to. For example, even as a boy, he knew that he would succeed in life. Or, I thought it would rain, so I brought my umbrella. Like what? We often use would as a kind of past tense of will or going to. Even as a boy, he knew that he would succeed in life. जैसा as a boy वो जानता था, he knew वो जानता था कि he is going to succeed in life और like वो जो है life में succeed हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा या फिर he will success in life, फिर वो कामयाब हो जाएगा. I thought it would rain. मुझे लग रहा था कि शायद बारिश It is going to be rain. मुझे लग रहा था कि शायद बारिश होने जा रही है. I brought my umbrella. तो इसीलिए मैं अपनी umbrella ले आई हूँ. Using would as a kind of past tense of will or going to is common in repeated speech. She said that she would buy some eggs. She said that she would buy some eggs. So here would what? I will buy some eggs. Like उसने कहा था कि वो जो है शायद she is going to buy. यहाँ पर जो would है ये यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहा है कि she is going to buy. Like I will buy some eggs. कि मैं जो हूँ eggs खरीद लूँगी. The candidate said that he wouldn't increase taxes. I won't increase taxes. Like candidate ने कहा कि वो जो है taxes increase नहीं करेंगे. Like I won't increase taxes. So here यहाँ पर भी जो wouldn't जो है ये going को show कर रहा है. Why didn't you bring your umbrella? I told you it would rain. आप अपनी umbrella क्यों नहीं लाए? मैंने आपको बताया था कि it is going to be rain or it is going to rain or it is going to start rain. So here we are using would as a going to. We use would for unreal situations. The word would is used for unreal or imagined situations. Like वो चीज़ जो unreal हो और उसे हम imagine कर रहे हो तो वहाँ पर भी हम would use कर सकते हैं. For example, I would love to visit New York. Like मुझे बहुत पसंद है New York visit करना. She would like to be professional footballer. वो पसंद करती है कि वो जो है professional footballer बन जाए. We would go but we are too busy. We would go but we are too busy. हम जाते लेकिन हम जो है बहुत बिजी हैं. लाइक हम जो यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन को शो कर रहे हैं. Would not as a refusals. Wouldn't or would not is used to show that someone refused to do something. Like I asked him, मैंने उनसे पूछा if I could borrow his car but he wouldn't lend it to me. मैंने उनसे पूछा कि if I could borrow his car कि मैं जो उनकी कार borrow कर लूँ like उधार ले लूँ but he wouldn't lend it to me लेकिन उन्होंने मुझे उधार नहीं दिया. He wanted a divorce but his wife would not agree. वो जो है divorce देना चाहता था लेकिन उसकी जो wife थी agree नहीं करती थी. तो यहाँ पर भी जो would not है ये refusal के लिए use होता है. Yesterday morning the car wouldn't start. कल सुबह कार जो start नहीं हुई थी. Would rather like used to when talking about habitual past behavior. Every weekday, my father would come home from work at 6 p.m. and watch TV.
लाइक एवरी वीकडे माई फादर वुड कम, मेरे फादर जो है वो आते, लाइक ये पास्ट बिहेवियर की बात हो रही है। यूज टू पता है लाइक हैबिचुअल पास्ट टेंस, ये भी एक हमारा स्ट्रक्चर है यूज टू, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये वो है जब हम जो अपने पास्ट की बात करते हैं, लाइक हम जो पास्ट में जब जिसके हैबिचुअल होते थे, लाइक आई यूज टू प्ले, मैं खेला करती थी, और आई यूज टू वॉच, मैं देखा करती थी, आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करती थी, आई यूज टू लर्न, मैं सीखा करती थी। तो ये यूज टू इसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये जो वुड है ये यूज टू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरी वीकडे माई फादर वुड कम और माई फादर यूज टू कम, कि मेरे फादर आया करते थे होम फ्रॉम वर्क एट मतलब काम से आते थे एट 6 PM एंड वॉच टीवी, और आते थे 6 बजे और टीवी देखते थे। एवरी समर वी वुड गो टू द सी साइड, हर गर्मी में हम जो है जाया करते थे सी साइड। We would go to the seaside or we'd go to the seaside. It is a like construction of we would. Sometimes she'd phone me in the middle of the night. Sometimes वो मुझे फोन करती है रात के दरमियान, रात के बीच में। ये मुझे फोन करती है नहीं, ये मुझे फोन किया करती थी। She'd phone me, तो यहाँ पर जो she'd है ये used to के लिए यूज हो रहा है, लाइक ये पास्ट बिहेवियर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। We would always argue, we could never agree. हम जो है हमेशा आर्ग्यू करते थे और हम जो कभी भी एग्री नहीं होते थे। Here we are using would for conditional. We often use would to express the so-called second and third conditional. Conditional सभी मैंने पढ़ा ही नहीं, जब मैं आपको इसका टॉपिक इसका एक्सप्लेन करूंगी जब आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे आपको मैं इन शॉर्ट समझा देती हूँ। इफ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी, अगर वो अपनी जॉब जो है खो देता है तो उसके पास मजीद कोई पैसे नहीं होंगे। इफ आई हैड वन, अगर मैं जीतती, इफ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ कार, अगर मैं लॉटरी जीतती तो फिर मैं जो हूँ कार खरीद लेती। यूजिंग द सेम कंडीशनल स्ट्रक्चर वी ऑफन यूज वुड व्हेन गिविंग एडवाइस। I wouldn't eat that if I were you. मैं नहीं खाती अगर मैं तुम्हारी जगह होती। If I were in your place, I refuse. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इनकार कर देती। If you ask me, I would say you should go. अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं ये कहती कि तुम्हें जाना चाहिए। Would be used for desire or inclination. I'd love to live here. मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। Like would be used for ख्वाहिश and for inclination, जहाँ जिस चीज़ के लिए बारे में हमें जो चीज़ बहुत पसंद हो। I'd love to live here. Would you like some coffee? क्या आपको कॉफी पसंद है? What? I'd really like it some tea. मुझे जो है टी बहुत पसंद है। Would for polite requests and questions. Would you open the door please? More polite than open the door please. Like would जो है sometimes हम वहाँ भी यूज करते हैं जब हमें अपनी बात को जो है when we want to make something more polite, there we use would. Like हम जो बात बहुत आसानी से कह देते हैं like open the door, go there, तो why not we use would for making it more polite or for making it more request to impress सामने वाले बंदे को के लिए, जब हम किसी को इम्प्रेस करना चाहें और थोड़ा उसके लिए उसको बहुत पोलाइटली डील करना चाहें तो वहाँ पर हम वुड यूज कर सकते हैं। वुड यू ओपन द डोर प्लीज? इट इज मोर पोलाइट देन ओपन द डोर प्लीज। वुड यू गो विद मी? मोर पोलाइट देन विल यू गो विद मी? ये इट्स नॉट पोलाइट। वुड यू गो विद मी? सो इट्स मच पोलाइट। वुड यू नो द आंसर? मोर पोलाइट देन डू यू नो द आंसर? What would the capital of Nigeria be? More polite. It is more polite than what is the capital of Nigeria or what is the capital of Pakistan? Opinion or hope? I would imagine that they'll buy a new car. मतलब मैं इमेजिन कर रही थी कि हम वो जो है नई कार खरीदेंगे, तो यहाँ पर ओपिनियन या फिर किसी होप के लिए हम यूज कर भी सकते हैं वर्ड। आई सपोज सम पीपल वुड कॉल इट टॉर्चर। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है इसीलिए कॉल करते हैं, तकलीफ देने के लिए कॉल करते हैं। आई वुड हैव टू एग्री। आई वुड हैव टू अग्री।
मुझे जो एग्री होना पड़ेगा। आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू कम, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कि वो आएगा। सिंस यू आस्क मी आई वुड से द ब्लू वन इज द बेस्ट। अगर तुम मुझसे पूछती हो तो मैं ये कहूंगी कि ब्लू वन जो है वो ज्यादा बेस्ट है। So here would for the wish, I really want you to stay. I hope you will stay. I wish you would stay. कि मैं विश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे रहो, और इसका मतलब ये भी है I really want you to stay कि आप जो वाकई यहाँ रहो, और मैं चाहती हूँ, मैं वाकई चाहती हूँ कि आप यहाँ रहो। I hope you will stay. So here they don't like me. I'm sure they wish I'd resign. वो मुझे नहीं पसंद करते, मुझे यकीन है कि वो ये चाहेंगे कि I'd resign, कि मैं रिजाइन दे दूँ। आई वुड की कॉन्ट्रैक्शन जो है आइड भी हो सकती है। सो आपने देखा है कि यहाँ पर मैंने वुड जो है कितने सारे टर्म्स के साथ यूज़ किया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया, पोलाइट, रिक्वेस्ट, फॉर कंडीशंस, फॉर विशेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया। सो आप भी इनको जो है यूज़ करें इन मेक सेंटेंसेस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको कैसे समझ में आई है, और इसके अलावा मेक 5 sentences in a comment section. Alright, so till then, take care, keep learning. Allah Hafiz.